morning, everyone. गुड मॉर्निंग सबको. A word that came to me recently, shared from Brother Santos, was about our church meetings that we do together. एक जो वचन मेरे पास आया वो ब्रदर संतोष हमको बता रहे थे जो चर्च का मीटिंग होता है. And it was to check with ourselves, are we getting life out of the meeting? और वो हमारे साथ हम अपने आप से पूछे कि हम उसमें जीवन पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं. In the Gospel of John, chapter 1, verse 4, it says how in him was life, and his life is the light of men. और यूहन्ना की किताब और उसका पहला अध्याय Yeah, John 1. Gospel of John 1, verse 4. Yes. And so if I'm coming to a meeting, whether online or in person, and then I'm not getting life out of it at the end, then I'm missing the point. और यूहन्ना की 1:4 ऐसा लिखा है, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था. और अगर मैं चर्च मीटिंग में आ रहा हूँ और मुझे वो जीवन नहीं मिल रहा है. So I've been looking in my own life in the past since I heard that, like, does anything change after the meeting, or is it am I just going to meetings and conferences? तो मैं अपने आप को ये परख रहा था कि मैं जैसे मीटिंग में जाता हूँ, क्या मेरे जीवन में कोई बदलाव आ रहा है या मैं ऐसे ही जाके खाली हाथ आता हूँ वापस. So this morning we were hearing about God's love. तो आज हमने सुना परमेश्वर के प्रेम के बारे में. And for myself, one area where my experience of God's love gets tested is in tests and trials that come. और एक जो चीज़ जहाँ पर वो परीक्षा आती है परमेश्वर की प्रेम के बारे में, वो है जो हम समस्या से जाते हैं तब. In Romans chapter 8, verse 28 and 29. रोमियो के 8 में 8, yeah, 28, 29. We know all things work together for good. It says, और 28 और 29 में. And we know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to his purpose. हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है. For whom he foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his Son, that he might be the firstborn among many brethren. अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों के पहलौठे ठहरे. I need to understand this verse also from the point of God's incredible love for me. Things will work together for good for me in view of how much God loves me. और मुझे ये जो वचन है वो परमेश्वर कैसे देखते हैं मुझे वैसे समझना चाहिए, जैसे जितना परमेश्वर मुझसे प्यार करते हैं वो उतना मेरे लिए भलाई ही करेंगे. That's spoken to me a lot in the last few years, going through lots of tests and trials, when I realized that God still loves me, but I don't see his love in that he wants to give me a comfortable life. और ये जो वचन है वो मेरे जीवन में ऐसा आया जब मैं कठिन परिस्थिति से जाता हूँ, तभी मुझे दिखता नहीं है कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं या नहीं करते हैं, और परमेश्वर मुझे आराम का जीवन देने चाहते हैं या नहीं. When trials come, I could think that God doesn't love me because this hard thing is happening. और जब ऐसे कठिन परिस्थिति आती है तब हम ऐसे सोचते हैं कि परमेश्वर हमसे प्यार नहीं करते. But he's actually trying to conform me into Christ's image, which is actually my best good and my greatest happiness. पर परमेश्वर का इच्छा ये है कि वो हमें यीशु मसीह के रूप में परिवर्तन करे और वो अंतिम में हमारे लिए अच्छा होगा. And just one example that comes to me very often is in Exodus chapter 14, when the children of Israel were crossing the Red Sea. और एक जो वचन मेरे पास आता है वो है निर्गमन Exodus 14:13. उसका 14 का 13 वचन. I have to find it too. And that was after God delivered them from Egypt. He led them out, led them away. They were very happy. They got out of Egypt, got lots of treasure, and then suddenly they're at the Red Sea.
और ये वचन तभी आता है जब जो इज़राइल है वो इजिप्ट से बाहर आए हैं और परमेश्वर ने उनको छुटकारा दिया और बाहर आने के बाद वो आते हैं लाल समुद्र के पास। All the previous trials seemed big, but this was even bigger now and more harder to overcome. और जो पिछला जो समस्या था वो बड़ा दिख रहा था, पर ये अभी समुद्र के पास आए तो ये और भी बड़ा समस्या दिख रहा है। But God specifically led them there. In the verses before, it said he specifically brought them there because he wanted to show his name. और परमेश्वर ने उनको वही जगह से लेके आया क्योंकि परमेश्वर उन अपना सामर्थ दिखाना चाह रहे थे। So the children of Israel were tempted at that time to think God didn't love them. और जो इज़राइल के बच्चे हैं वो ऐसा उनको समस्या आया कि वो ऐसा सोच रहे थे कि परमेश्वर हमसे अभी प्यार नहीं करते। So that comes to me often to realize when God brings me to those Red Seas in my life, God actually loves me very much and he's trying to bring me through the Red Sea and conform me into Christ's image through it. और मुझे ये जो एक एग्जाम्पल है वो हमेशा याद आता है जब भी मेरे जीवन में ऐसा लाल समुद्र जैसा बड़ा कोई समस्या आता है तो मैं ऐसा सोचता हूँ परमेश्वर मुझे प्यार करते हैं नहीं करते हैं, पर हम जब बाइबल पढ़ते हैं तो वो याद आता है कि हाँ परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करते हैं और वो मुझे आगे लेके जाना चाहते हैं उनके सामर्थ्य के द्वारा। Yeah, so that's what I'd like to leave you with. Whatever trials come, for me, it helps me to remember God is not trying to give me a comfortable life, but he's trying to conform me into Christ's image, and that's his best love for me. और ये एक वचन के साथ मैं छोड़ना चाहता हूँ आपको कि हम जितने परिस्थिति से हम जा रहे हैं, समस्या से जा रहे हैं, तो ऐसा मत सोचो कि परमेश्वर तुमसे प्यार नहीं करते। परमेश्वर तुमको यीशु मसीह के रूप में परिवर्तन करना चाहते हैं और वो तुम्हारे लिए बहुत सही और अच्छा है। Thank you, amen. धन्यवाद। भाइयों से जो कुछ भी सुनने मिला उसके लिए मेरा दिल खुश है I'm really glad for what I heard from the brothers and sisters. कि परमेश्वर का प्यार जो बाइबल कहते हैं उसका बेस है। अगर हम बाइबल का पूरा देखते हैं तो उसमें एक ही चीज दिख कर आता है, परमेश्वर का प्यार। God's love is the foundation for all that we read in the Bible. बाकी कोई भी जब हम धर्म की पुस्तक पढ़ते हैं वहां प्रेम के बारे में कभी नहीं लिखा, लेकिन अगर बाइबल पढ़ते हैं वहां देखते हैं हम परमेश्वर आपसे और मुझसे कितना प्यार करता है। When we read the other religious books, we don't find that God's love is the foundation of it. But when we read the Bible, we see that God's love is the foundation on which the word of God is based. जैसे आप सुसमाचार अध्याय यूहन्ना का सुसमाचार 3:16 में वहां लिखा है परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि उसका एक ही पुत्र था, एक लौता पुत्र, उसको हमारे खातिर दे दिया। Just like we read in John chapter 3 and verse 16, which says that for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him should not perish but have everlasting life. देखो इससे बड़ा प्यार कुछ नहीं कि कोई पिता अपना पुत्र को हमारे खातिर देता है। There's no greater love than this, that God should give his Son to die for us. बाइबल कहता है और उसके पास कुछ भी नहीं था देने के लिए, एक ही था उसका पुत्र और वो हमारे खातिर दे दिया। We see that God had only one Son and he gave him for us because of his love. देखो और कुछ भी चीज परमेश्वर देता था, अगर अपना पुत्र नहीं देता तो हम सोचते थे अरे पुत्र बचा लिया, लेकिन बाइबल कहता है उसने अपना सबसे प्यारा चीज हमारे खातिर अर्पण कर दिया। What was most precious to God, that is his Son, he gave him for us, and therefore we know that God loves us so much. If he had given us something other than his Son, then we could have said that, oh, he kept his Son away from us. सो प्रिय भाई बहनों, जैसे भाई मैथ्यू ने कहा कि परमेश्वर को जब हम देखते हैं तो हमारे मन में क्या आता है, अरे वो मेरा नाश कर देगा, वो मुझको देखता रहता है, वो मुझ पे गुस्सा है। Just like we heard Brother Matthew speak, and he said that many times we think that God is looking at us, he's watching us, he wants to find fault with us and he wants to destroy us. मोस्टली जब भी कभी हमसे पाप हो जाता है या हम कभी कुछ गलती हमसे या अधर्म हमसे हो जाता है, हमारा पहला सोच यही आता है परमेश्वर मुझसे नफरत करता है, अभी परमेश्वर पहले जैसा प्यार नहीं करता। And many times when we fall into sin, when we commit some sin, then we think that now God does not love me as he would love me if I had not committed. He hates me now. क्योंकि हम सोचते हैं हमारे अच्छे जीवन जीने से प्रभु खुश होता है, Because we think that God loves us only when we lead a good life. लेकिन हमने सुना जब हम पापी थे तब से उसने हमसे प्यार किया है। But we heard that while we were yet sinners, Christ loved us. लेकिन
प्रिय भाई बहनों, जब हमसे पाप होता है हम परमेश्वर से दूर भागते हैं, Whenever we fall into sin, we see that we run away from God. क्योंकि उसी समय हमारे अंदर परमेश्वर के प्यार के अंदर डाउट आता है. It is then that this doubt rises in us about God, whether He loves us or not. आदम और हवा ने क्या किया? पाप हुआ, पहले भाग गए वो परमेश्वर से. And just like Adam and Eve, they ran away and hid themselves when they committed और हम sin. जानते हैं परमेश्वर जो प्रेम का धनी है वो उनकी खोज में आया है. And God, who is rich in His love, came seeking for them. आपको पता है हम पाप करके भागते हैं, आपको ढूंढते हुए कौन आता है? प्रभु यीशु. Do you know that when you run away from God after committing sin, He comes seeking after you? नए करार में पतरस ने जब पाप किया, यीशु को नाकार के 3 बार, वो भाग रहा था. वो बोल रहा था मेरा मिनिस्ट्री खत्म, मैं मच्छी पकड़ने जा रहा हूं वापस. So just like Peter, when he denied Jesus 3 times, he ran away and he said that now my ministry is finished, I'm going back to fishing. यीशु मसीह ने उसे कहा तुझको मैं मेरे कलीसिया का खंबा बनाऊंगा, तुझे मैं इस्तेमाल करूंगा. और ये जब उसने पाप हो गया उसने सोचा अब मैं कुछ काम का नहीं हूं, मैं परमेश्वर की कलीसिया का कोई हिस्सा नहीं बन सकता, परमेश्वर मुझे छोड़ देगा. और वो भागने लगा. बाइबल कहता है वो मच्छी पकड़ने के लिए फिराक में था और वो अपने दोस्तों से कहता है यूहन्ना से, मैं मच्छी पकड़ने जा रहा हूं. And but God said that I will make you. He calls him Peter, the rock on which he would build his church. He would make him the pillar of the church. And but what Peter thought was that his ministry was over and he was going back fishing. He tells the other disciples that I'm going back to fish. लेकिन यीशु उधर रुका नहीं. But Jesus did not stop यीशु there. उसको ढूंढता हुआ उसके पास गया. He went seeking after him. उसको पता था सबसे ज्यादा जरूरत पतरस को है. He knew that Peter needed him the most. इसके लिए और किसी के पास नहीं गया. He did not go to anybody else. He went to Peter. तुरंत जाके यीशु ने उसे पूछा नहीं, तूने मुझे 3 बार डिनाई किया, देखा? And did Jesus tell him, talk to him in this way? See, I told you that you would deny me 3 times and see what you have done. नो. He did not say that. यीशु ने क्या कहा? आओ भोजन करते हैं. Jesus said, come and dine with me. वो टॉपिक कोई नहीं निकाला. He did not bring up that topic. बाद में भोजन के बाद पीटर को अकेला लेके गया. And after the time of dining that they had, he took Peter aside. हम होते तो क्या करते? सबके सामने, देखा मैं बोला था ना 3 बार तू मुझे डिनाई करा, तू बोल रहा था ना बहुत करूंगा मैं तेरे लिए, क्या हुआ देखा ना तूने? अगर हम होते तो ऐसे कहते. But we would have done what would we have done? We would have spoken things out in front of everybody and we would have said that, see, I told you that you would deny me 3 times and see what you have done. You have denied me 3 times. लेकिन यीशु ने ऐसा नहीं किया. But Jesus didn't do this. यीशु ने उसको सेपरेट हाथ पकड़ा, पीटर तेरे से बात करना है. And he called him aside and spoke to him separately. और उससे क्या पूछा And what did he tell him? कि तूने मुझे कैसे डिनाई किया? वो नहीं होता है, तू मुझसे प्यार करता है ना पीटर? He did not tell him, do you love me? He said, you love me. Isn't it my son? तू मुझे प्यार करता है ना? You love me, no? उसके अंदर डाउट था कि प्रभु शायद सोचेगा मैं प्यार नहीं करता. वही चीज यीशु ने पकड़ा और कहा तू मुझसे प्यार करता है ना? He had that doubt in him, but Jesus asked him, you still love me, no? कितने बार डिनाई किया था पीटर ने? How many times did the Lord deny? चिल्ड्रन बोलो. Peter 3 deny? टाइम. कितने बार यीशु ने उसको वही सवाल पूछा? यस, 3 टाइम वापस यीशु ने उसको वही पूछा. And डू यू 3 लव मी? 3 times he denied and 3 times he was asked this question. अब पीटर एनकरेज्ड हो गया And Peter was encouraged. और वो परमेश्वर की सेवा के लिए तैयार हो गया. And then he was renewed in that वही पीटर अभी ministry. हजारों लोगों के सामने यीशु का टेस्टिमनी बन के खड़ा हो गया. and then he could be a testimony before thousands of people. सो प्रिय भाइयों बहनों, हमसे जब गलती होती है परमेश्वर के प्यार में डाउट मत करो. Whenever we commit some mistakes, we should not doubt हम God's मिस्टेक love. नहीं कहेंगे, हम सिन कहेंगे. जब हमसे सिन होता है, हमसे पाप होता है, हम परमेश्वर को देख के डाउट नहीं करें. Whenever we commit a sin, let's not look at God and doubt his love. हम खड़े हो जाएंगे, प्रभु से कहेंगे प्रभु मुझसे पाप हो गया है, मैं मन फिराना चाहता हूँ और आई स्टिल ट्रस्ट यू लव मी. Let's go to the Lord and confess to him that, Lord, I have committed this sin and please forgive me.
और मैं तो तेरे प्यार पे अभी भी भरोसा करता हूँ। and I still have full confidence in your love. देखो निनवे के लोगों को परमेश्वर नाश करने वाला था, The people of Nineveh were to be destroyed by God, लेकिन योना नबी जो था but Jonah the prophet, उसको मालूम था परमेश्वर ये नहीं करेगा। and he knew that God would forgive these people. आप पढ़ के देखो योना का पुस्तक में, If you read the book of Jonah, जोना वहां जाना नहीं चाहता था। Jonah did not want to go to Nineveh. उसको पता है क्यों नहीं जाना चाहता था? You know why he didn't want to go to कि Nineveh? आपको वचन बताता, क्योंकि वो जानता था परमेश्वर का एक नेचर के बारे में। Because he knew God's nature. आपको वो नेचर बताना चाहता हूँ। I want to show God's nature to you. योना की पुस्तक The book of Jonah उसका 4 अध्याय and chapter 4. उसका दूसरा वचन के आखिरी में से दूसरा वचन हम पूरा पढ़ते हैं। वहां लिखा है योना अध्याय 4 उसका दूसरा वचन, सॉरी उसका पहले वचन से हम पढ़ते। ओके, यह बात योना को बहुत बुरी लगी। देखो परमेश्वर अब डिसाइड किया कि मैं नहीं मारूंगा निनवे को, ये बात योना को बहुत बुरी लगी। We see that God decided that he will not destroy the people of Nineveh, and this displeased Jonah a lot. और बोलता है उसका क्रोध भड़क गया And it says over here that he became angry और वो परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा, and he prayed to the Lord. हे यहोवा, जब तू अपने देश में, मैं जब अपने देश में था तब क्या मैंने यह बात न कहा था? इस कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तर्शीश को भाग जाने में फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता हूं कि तू अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर है और विलंब से क्रोध करने वाला करुणामय परमेश्वर है। So we see here that he prays to the Lord and said, "Please, Lord, was not this what I said while I was still in my own country? Therefore, in order to forestall this, I fled to Tarshish, for I knew that thou art a gracious and compassionate God, slow to anger, abundant in loving kindness, and one who relents concerning calamity." ये हमारा परमेश्वर This is our God. अनुग्रहकारी, He's a God who's gracious, दयालु, compassionate, विलंब से क्रोध करने वाला अति करुणामय परमेश्वर, slow to anger, and abundant in loving kindness, और दुख देने से वो प्रसन्न नहीं होता। and one who relents concerning calamity. क्या अद्भुत परमेश्वर है प्रिय भाइयों बहनों। What a wonderful God we have. वो हमको दुख दे के कभी खुश नहीं रहता, He is not happy to see us sad. वो हमेशा करुणा करना चाहता है, He always wants to be दया compassionate. करना चाहता है हम पर। He wants to show us mercy. और योना को इसका परमेश्वर का ये कैरेक्टर पता था। And Jonah knew about this Nature. quality of God's character. इसीलिए वो उसको क्या लगा कि मैं झूठा ठहर गया। So he felt that he would appear false to people. लोगों के इतने सारे बड़ा शहर है निनवे, उसमें इतने सारे लोग हैं, उनके सामने मैं झूठा ठहर गया, परमेश्वर ने उन्हें नहीं मारा। And Jonah had said that God would destroy this people of Nineveh, and when God did not destroy, so he would stand before them as like he had said something false. सो प्रिय भाइयों याद रखो, कभी भी हमसे पाप हुआ तो एक परमेश्वर है, वो हमसे फिर भी प्यार करता है। So, dear brothers and sisters, let's pay attention to this, that God loves us greatly. और हम पाप से जब हम खड़े होते हैं वो वैसा ही प्यार करता है जैसा वो पहले करता था। Even though we may fall in sin, the Lord still loves us. फॉल इन सिन, और जब हम खड़े होते हैं And then when we rise up again, तब परमेश्वर का प्यार हमारे लिए बदलता नहीं। then God's love towards us does not change. सो प्रभु के प्यार के ऊपर हम ट्रस्ट करें Let's trust in God's love और उसके ऊपर भरोसा रखें। and let's put our प्रभु हम confidence in सबको Him. आशीष दे। May the Lord bless each सो of प्रिय us. भाइयों, सो नाउ डियर ब्रदर सिस्टर, इट्स टाइम फॉर लॉर्ड सपर। नाउ ब्रदर हम सब 1 Corinthians 11 chapter 11 को लेंगे। Let's turn to 1 Corinthians chapter 11. सो पौलुस यहाँ एक बहुत गंभीर बात कह रहे हैं हमसे। So here Paul is talking about a very serious matter. 1 Corinthians 11 verse 23 onwards हम पढ़ेंगे। 1 Corinthians chapter 11 verse 23 onwards. क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची
और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। सो वो कहता है कि जब उसको प्रभु के पास कुछ खबर आया, वो कहता है कि वो खबर मैं अपने पास नहीं रखना चाहता हूँ, मैं अपनी कलीसिया को भी बताना चाहता हूँ। So Paul is saying that I got a message from God and I don't want to keep this message with me. I want to share it with the church. सो हम कई बार इस प्रभु भोज के बारे में इस वचन को पढ़े। And many times when you come to the Lord's table, we have meditated on this passage. सो मुझे 2 वर्ष मुझे बहुत मुझे प्रोत्साहन दिया यहाँ पर। And two verses here have encouraged me a lot. वर्स 28, Verse 28. इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। सो यहाँ पर लिखा है कि मनुष्य अपने आप को जांच ले। So here it says, let a man examine himself. ऐसा नहीं लिखा कि किसी और को जांचे, मनुष्य अपने आप को जांच ले। Here it doesn't say that we examine another person, but it says that we examine ourselves. तो इस जगह पर मेरा नाम रखा हूँ, मनुष्य की जगह पर मेरा नाम रखा हूँ, So here where the word man comes, I want to put my own name. इसलिए ऐसा है। जोसेफ अपने आप को जांच ले। So let Joseph examine himself. वर्स 32 में भी गंभीर बात लिखा है। And in verse 32 also a serious thing is written here. 31 Verse 31. यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड न पाते। सो यहाँ लिखा है कि यदि जोसेफ अपने आप को जांचते हैं, वो प्रभु के सामने दंड नहीं पाते हैं। So here it says that if we judge, that is if Joseph judges himself, then we will not be judged. जानता है इब्रूस में 9 वर्स 27 हम पढ़ेंगे। इब्रूस 9 वर्स 27। Hebrews 9 verse 27, let's read. यहाँ पर एक नियम रखा गया है। Here one command is given. इब्रूस 9 वर्स 27। Hebrews 9:27. और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, सो यहाँ पर क्या लिखा है? मनुष्य एक ही बार मरना है So here it says that man has to die only once, और इसके बाद क्या होना है? and after that what is to उसके happen? लिए न्याय रखा है। And that there is judgment kept. मरने के बाद न्याय रखा है। That after death there is judgment. लेकिन दुख की बात है कि मरने से पहले हम कई लोगों का न्याय करते हैं। But the sad thing is we judge people before death. जानते हैं जब छोटे पुत्र घर पे आया, पिता के घर पे, Do you know when the prodigal son returned home, जानते हैं जब वो बाहर थे that when he was still away, और वो पश्चाताप करके पिता के घर पे आया, and he repented and he started coming to his father's house, और जो छोटे पुत्र बाहर थे and the elder son, the younger son was out, और उसके बड़े पुत्र किधर है? पिता के घर में थे। and the elder son was at home. जानते हैं उस स्टोरी के आखिरी में क्या हुआ? And do you know what happens at the end of the story? जो बाहर थे छोटे पुत्र, वो पिता के घर के अंदर थे, At the end of the story, it happened that the younger son who was out, he was inside the father's house, लेकिन जो घर के अंदर जो बड़ा पुत्र था वो घर के बाहर था, but the elder son who had been at home, he was outside the house. क्योंकि उसने उस छोटे भाई के बारे में ये सुना कि इसने सारा पिताजी का पैसा वेश्याओं में उड़ा दिया हुआ। And because he heard that the younger son had spent all his money on the prostitutes. बट बड़ा पुत्र इस सारे जानकारी पता नहीं उसको, छोटा पुत्र किस मामले में पैसा उड़ाया। And the elder son doesn't know that on what he has spent the money. शायद वो किसी दारू पीने में या कोई दोस्तों के साथ पैसा खर्चा मैंने सारा पैसा उड़ाया होगा, Maybe he has spent his money in drinking alcohol or spending time with his friends. लेकिन इसके बड़े पुत्र की सोच क्या था? इसकी सिर्फ सोच विचार था कि इसने सिर्फ वेश्याओं में उड़ा दिया पैसा। But the elder son, he has only imagined that he has spent all the money on the prostitutes. प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपको क्यों कहना चाहता हूं कि बाइबल में हिब्रूस 9:27 में लिखा है कि मनुष्य को मरना एक बार अवश्य है, उसके बाद न्याय है। But sister, why I'm telling you this is because Hebrew 9:27 says that after that there will be judgment. है ना? मरने के बाद कुछ समय के बाद न्याय रखा गया है, That means after death, after some time, there is judgment. मरने से पहले नहीं है। No, there is no judgment before death. सो हम जानना चाहिए कि जैसे कि हम बड़े पुत्र के जैसा उस छोटे पुत्र को हर एक लोगों के ऊपर हम न्याय करना लगते हैं कभी कभी। And we, like the elder son, we try to judge everyone like how he judged the younger son. यहाँ लिखा है कि जब हम यहाँ पर लिखा है कि ये 1 Corinthians 11:31, यदि हम अपने आप को जांचते हो दंड ना पाते हैं।
Here in 1 Corinthians chapter 11, verse 31, it says that, for if we judge ourselves, we would not be judged. सो पौलुस यहाँ पर हमें प्रोत्साहन, जब कभी प्रभु भोज में भाग लेते हो, सबसे पहले हम अपने आप को जांचना है. And so Paul is reminding us that whenever we partake in the Lord's table, that we have to examine ourselves. सो कल्पना करो अगर आप यदि कोई डॉक्टर के पास गया हो Just imagine that you go to a doctor आपकी आंख दिखाने के लिए, to get your eyes checked, लेकिन आपको पता चला वो डॉक्टर खुद ही आंखों की समस्या से गुजर रहा है, and you come to know that the doctor himself is having eye problem. तो वो डॉक्टर आप किस तरह आपको मदद कर पाएगा? Then how will that doctor be able to help you? वो बिल्कुल मदद नहीं कर पाएगा. He will not be able to help you. इसलिए मैथ्यू के किताब में लिखा है कि यदि आपकी आंखों में कुछ तिनका है, And that's why it says that if there's a speck in your eye, सबसे पहले उसको निकाल दो. first remove that speck. दैट मीन्स हम किसी को भी हम सोचते हैं कि किसी को भी नीचे नजर से देखना, That means if we look, try to think of someone with a low esteem, और कई लोगों से मैं उत्तम हूँ, and I am below someone else, दैट मीन्स ब्रदर्स एंड सिस्टर, हम अपनी आंखों में जो तिनका है वो अभी भी रखा है और हम दूसरों को मदद करने जा रहे हैं कि अभी तुम्हारा आंख में बड़ा सा ये है, वो निकाल दो. and that means that we still have that speck in our eyes, and we're trying to help someone else. That means we should remove that thing from our eyes. बाइबल में लिखा है कि अंधे दूसरी अंधों को वो रास्ता नहीं दिखा नहीं सकता है. The Bible says that a blind man cannot lead a blind man. बाइबल में लिखा है कि दोनों खड्डा में गिरेंगे. It says that both of them will land up in the ditch. सो इस वचन के द्वारा में मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला. इसलिए पौलुस कहता है कि यदि हम इस प्रभु भोज में भाग लेते समय And that's why Paul says that whenever we partake in the Lord's table, एक रीति है. that there's a way it is to be done. सो 27 में लिखा है कि यदि कोई अनुचित रीति से प्रभु को रोटी खाए और कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा. वर्स 27. So in verse 27 says, therefore, whoever eats this bread or drinks this cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of the body and the blood of the Lord. सो प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु यीशु हमारे लिए क्या किया 2000 साल पहले, आज हमें याद रखना है. So brothers and sisters, we need to remember what Jesus did for us 2000 years ago. वो शरीर किसके लिए टूटा गया है, हमको पहचानना है. हमको For what reason, for whom was the body broken, we need to recognize that. उसकी लहू किसके लिए बहाया गया है, हमें एक बार याद रखना है. हमें For whom was his blood shed, we need to remember that. बाइबल कहता है कि प्रभु यीशु का मसीह का लहू हमारे सारे पापों से शुद्ध करती है. The Bible says that the blood of Jesus Christ cleanses us from all our sins. सो हम जांचेंगे, अभी अपने आप को हम न्याय करेंगे. So let us examine ourselves and let us judge ourselves. जैसे हम प्रभु भोज के आएंगे, आगे आएंगे And as we come forward to the Lord's table, और हम एक 20 सेकंड के लिए समय बिताएंगे. and we will spend 20 seconds. प्रार्थना करेंगे. प्रभु हम स्तुति और धन्यवाद करते हैं प्रभु, 2000 साल पहले जो मेरे और मेरे पापों के खातिर आपने किया है. हम धन्यवाद करते हैं प्रभु इस रोटी जो आपको शरीर को दर्शाता है और इस द्राक्ष रस जो आपके लहू को दर्शाता है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु. प्रभु हम अपने आप को प्रभु जांचते हैं प्रभु. सबसे पहले अपने आप को हम न्याय करते हैं प्रभु जी. प्रभु हमें सहायता और मदद कर प्रभु जी. इस रोटी में से और खाएंगे और पिएंगे प्रभु, हम उचित रीति से प्रभु लेने के लिए हमें सहायता कर प्रभु. थैंक यू लॉर्ड. धन्यवाद उस क्रूस के लिए, धन्यवाद उस लहू के लिए प्रभु, धन्यवाद उस प्रेम के लिए मेरे प्रभु. थैंक यू जीसस. यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन. सो प्रिय भाइयों बहनों, जो जिन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया हो, So dear brothers and sisters, whoever has taken the water baptism, जो लोग विश्वास की कदम पर चल रहे यीशु मसीह के पीछे and who are walking in faith behind Jesus, और प्रभु के साथ संगति में हमेशा उजाला में चलने के लिए कोशिश कर रहे हैं, and who always are striving to walk, who are always trying to walk in the light of God, सिर्फ वही लोग आगे आकर इस प्रभु भोज में भाग लीजिए. and only those people can come forward and partake in the Lord's table. जैसे केविन गीत गाएगा और हम एक एक करके